سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان ال سعود کا دو روزہ دورہ پاکستان ماحولیاتی، آبی وسائل، زراعت، صنعت اور معدنی وسائل کے وزراء سمیت سرمایہ کاری کے نائب وزیر اور اعلیٰ حکام سعودی وفد میں شامل۔ سعودی وزیر خارجہ پاکستان کی اعلیٰ قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے دورہ سعودی عرب میں طے پانے والے امور پر عمل درآمد کا جائزہ مرکزی ایجنڈا۔ ریکارڈنگ سمیت مختلف منصوبوں میں سرمایہ کاری، مشترکہ منصوبوں کے آغاز سمیت اقتصادی اور تجارتی تعاون کے حوالے سے تبادلہ خیال ہوگا۔ وفاقی وزیر خزانہ کا واشنگٹن میں پاکستانی معیشت کے لیے مواقع اور چیلنجز کے موضوع پر اٹلانٹک کونسل کے اجلاس سے خطاب۔ محمد اورنگزیب نے معاشی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے حکومت پاکستان کا منصوبہ پیش کیا۔ ٹیکس ٹو جی ڈی پی تناسب میں اضافہ، ایف بی آر کی ڈیجیٹائزیشن، سرکاری اداروں میں اصلاحات، برآمدات اور ترسیلات زر میں اضافہ اور کاروباری ماحول کو بہتر بنانے سمیت دیگر حکومتی اقدامات سے آگاہ کیا۔ پاکستان نے آئی ایم ایف کے ساتھ اربوں ڈالر کے نئے قرض کے معاہدے پر بات چیت شروع کر دی۔ نئے قرض کے لیے 3 سالہ پروگرام کے لیے درخواست کریں گے۔ سرکاری اداروں کی نجکاری کے حوالے سے قومی ایئر لائن ہمارا پہلا منصوبہ ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا واشنگٹن میں اے ایف پی کو انٹرویو۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان برقرار۔ 100 انڈیکس تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ 500 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ دوران ٹریڈنگ 100 انڈیکس 71,000 کی حد عبور کر گیا۔ بین الاقوامی میڈیا نے مودی سرکار کا بھیانک چہرہ بے نقاب کر دیا۔ بی بی سی نے بھارت کے ہمسایہ ممالک کے ساتھ کشیدہ تعلقات کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ چین کے ساتھ لداخ تنازع سنگین کشیدگی اختیار کر چکا۔ پاکستان کے ساتھ تعلقات تو پہلے ہی خراب ہیں۔ بھارت کی اب مالدیو، سری لنکا اور بنگلہ دیش کے ساتھ بھی دوستی خطرے میں ہے۔ بنگلہ دیش اور مالدیو میں انڈیا آؤٹ مہم زور پکڑ گئی۔ بی بی سی رپورٹ۔ مودی سرکار بھارتی فضائیہ کی تباہی کا سبب بن گئی۔ ذاتی مفاد کی خاطر بھارتی فضائیہ کا بے دریغ استعمال۔ بھارتی فضائیہ کو معروف کاروباری شخصیت مکیش امبانی کے بیٹے کی شادی کے لیے استعمال کیا گیا۔ دفاعی لحاظ سے اہمیت کے حامل جام نگر ایئرپورٹ کو مکیش امبانی کے بیٹے کے مہمانوں کے لیے کمرشل ایئرپورٹ میں تبدیل کر دیا گیا۔ بھارتی عوام مودی کے اس عمل سے ناخوش، تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ صہیونی جارحیت جاری، اسرائیلی فوج کی رہائشی عمارتوں اور کیمپوں پر فائرنگ۔ مزید 68 فلسطینی شہید، 94 زخمی۔ شہداء کی مجموعی تعداد 33,797 ہو گئی، 76,465 زخمی۔ وسطی غزہ کے نصیرات مہاجر کیمپ کے شمال میں اسرائیلی ڈرونز کی فلسطینیوں پر بمباری، کم سے کم 2 افراد شہید اور متعدد زخمی۔ اسرائیل کی جانب سے ایرانی جوہری تنصیبات کو ممکنہ طور پر نشانہ بنانے کے بارے میں فکر مند ہیں۔ ایران نے اتوار کو اپنی جوہری تنصیبات کو سیکیورٹی خدشات کی بنیاد پر بند کر دیا تھا۔ صورتحال کے پیش نظر IAEA کے معائنہ کاروں کو جوہری تنصیبات سے دور رکھا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے جوہری توانائی کے سربراہ رافیل گروسی کی پریس بریفنگ۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کامرس نیٹ ورک ایشیا کا 24واں ایڈیشن پاکستان کی میزبانی میں 18 سے 20 اپریل تک ایکسپو سینٹر لاہور میں منعقد ہوگا۔ 3 روزہ تجارتی میلے میں $500 ملین کی سرمایہ کاری متوقع۔ 12 ممالک کے بین الاقوامی سرمایہ کاروں کا وفد شرکت کرے گا۔ 700 سے زائد سٹالز قائم کیے جائیں گے جن میں معروف عالمی اور پاکستانی ٹیک کمپنیاں حصہ لیں گی۔ ایونٹ ڈائریکٹر ITCN عمیر نظام۔ بلوچستان کی سماجی و اقتصادی ترقی میں پاک فوج اور صوبائی حکومت کا اہم کردار۔
पाक फौज ने अस्करियत पसंदों को दोबारा कौमी धारे में शामिल किया। तालीम, सेहत, समाजी और इक्तिसादी तरक्की के मुख्तलिफ मंसूबों को मुकम्मल किया। गवादर पोर्ट और सी पैक से तरक्की के एक नए दौर का आगाज हुआ। रिकॉर्डिक मंसूबा बलूचिस्तान के अवाम के लिए गेम चेंजर साबित होगा। पाक फौज की जबरदस्त काविशों और कुर्बानियों की बदौलत बलूचिस्तान तरक्की की राह पर गामजन हो चुका है। फ्रंटियर कोर नॉर्थ खैबर पख्तूनख्वा की सूबे के कई अजला में इंसदाद स्मगलिंग की कार्रवाइयाँ 5000 किलोग्राम मनशियात, अशियाए फरोनोश, बरकी आलात, कपड़ा, टायर, ऑटो पार्ट्स और गैर मुल्की जदीद असलहा पकड़ा गया। 42 मेट्रिक टन ममनुआ अशिया और अद्वियात नजर आतिश। अफगानिस्तान गैर कानूनी स्मगल होने वाला 6 किलोग्राम सोना और भारी मिकदार में गैर मुल्की करेंसी भी जब्त कर ली गई। मारूफ कॉमेडियन बब्बू बराल को अपने मदाहों से बिछड़े 13 बरस बीत गए। मज़ाहिया अदाकार ने स्टेज ड्रामे शर्तिया मिठ्ठे से मुल्क गिर शोहरत पाई। 50 से जायद फिल्मों में भी काम किया। मुनफरिद अंदाज अदाकारी की वजह से वो आज भी अपने परस्तारों के दिलों पर राज करते हैं। महकमा मौसमियात ने बारिशों के एक और सिलसिले की पेशगोई कर दी। मगरबी हवाओं का सिलसिला आज रात बलूचिस्तान में दाखिल होगा। 21 अप्रैल तक पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का इम्कान। नदी नालों में तुग़यानी का खतरा। पीडीएम में बारिशों के नए सिलसिले से निपटने के लिए तैयार। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 क्रिकेट मैचेस की सीरीज आगाज 18 अप्रैल से पिंडी स्टेडियम में होगा। बारिश के बायस कौमी खिलाड़ियों ने होटल में ही क्रिकेट के मजे लिए। क्रिकेटर्स होटल की राहदारी में स्क्वाड और नन्हे खिलाड़ी के साथ क्रिकेट खेलते रहे। नन्हे बॉलर ने भी अपने कौमी हीरोज को बॉलिंग कराई। कीवीज आज से 2 रोजा प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं। और टेक्सास में अमेरिकन मोटर जीपी स्पेन के म्यूरिक विनेल्स फाते रहे। विनेल्स ने 41 मिनट और 0.9.503 सेकंड्स के वक्त के साथ कामयाबी समेटी। स्पेन के ही पेड्रो अकोस्टा दूसरा नंबर और इटली के इनिया बास्टियानी ने तीसरी पोजीशन हासिल की। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ और दिन 12 बजे के खबरनामे के साथ मैं हूं उस्मा चौधरी और मैं हूं मनाजिर हुसैन। न्यूज़ हेडलाइंस आप जान चुके हैं। मज़ीद खबरों की जानिब बढ़ते हुए तफसील में सबसे पहले आपको आगाह करेंगे कि सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान अल सऊद का 2 रोज़ा दौरा पाकिस्तान। माहौलियात, आबी वसाइल, ज़राअत, सनत और मादनी वसाइल के वज़रा समेत सरमायाकारी के नायब वज़ीर और आला हुक्काम सऊदी वफ़द में शामिल हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा पाकिस्तान की आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के दौरे सऊदी अरब में तय पाने वाले उमूर पर अमल दरामद का जायजा मरकजी एजेंडे में शामिल है। इसके अलावा रेकोडिक समेत मुख्तलिफ मनसूबों में सरमायाकारी, मुश्तरका मनसूबों के आगाज समेत इक़्तिसादी और तिजारती ताउन के हवाले से तबादला ख्याल होगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि पाकिस्तान ने अपने इक़्तिसादी इस्लाहाती प्रोग्राम की हिमायत के लिए IMF के साथ अरबों डॉलर के नए कर्ज के मुआहदे पर बातचीत शुरू कर दी है। वाशिंगटन में AFP को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड के साथ 9 माह के $3 बिलियन के कर्ज प्रोग्राम के तहत 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की हतमी किस्त रवां माह के आखिर में मंजूर होने का इम्कान है। IMF के साथ नए कर्ज के लिए हम कम अज़ कम 3 साला प्रोग्राम के लिए दरख्वास्त करेंगे। उन्होंने कहा सरकारी इदारों की निजकारी के हवाले से कौमी एयरलाइन हमारा पहला मंसूबा है और हमारी कोशिश है कि जून के आखिर तक उसे फिनिशिंग लाइन पर ले जाएं। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने वाशिंगटन में अटलांटिक काउंसिल के इजलास में पाकिस्तानी मईशत के लिए 2024 और इससे आगे के मौक़े और चैलेंजेस के मौजू पर खिताब करते हुए माशी चैलेंजेस से निपटने के लिए पाकिस्तान के रोड मैप पर इजहार ख्याल किया। इस मौके पर अपने इंटरव्यू में वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने टैक्स टू GDP तनासुब में इजाफा, FBR की डिजिटाइजेशन, सरकारी इदारों में इस्लाहात, बरामदात और तरसीलात ज़र में इजाफा,
کاروباری ماحول کو بہتر بنانے اور FDI کے فروغ کے ذریعے معاشی استحکام حاصل کرنے کے لیے حکومت کے اقدامات کا خاکہ پیش کیا۔ We have certainly entered this year in much better shape than where we were beginning of last year. And a lot of it has to do with the 9-month SBA program, which in turn has sort of ushered in a macroeconomic stability for the country. Overall, GDP is moving in the right direction, although the headline number is not that significant. But the underlying growth levers, so agriculture GDP is growing at 5%. We have had bumper crops, that's helped us. The services sector is moving forward quite well. Inflation has come down from the peak of 37-38%, closer to 20%, and the exchange rate is stable. So all of this is, has moved us in the right direction. Now, where we take it forward from here is we need, in the first instance, permanence in this macroeconomic stability. Hence, the discussion with the fund on a larger and extended program. But also, we are going to be focused on the growth aspects of it as well when we look into 24, because the normal expectation is that when you're talking to fund or you're on a fund program, it's only about stabilization. اور وزیر خزانہ کے واشنگٹن میں مزید مصروفیات اور ملاقاتوں کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں کہ واشنگٹن میں امریکی تھنک ٹینک کے ارکان سے گفتگو میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ پاکستان نے کامیابی سے IMF کا پروگرام مکمل کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹیکس کلیکشن میں اضافے کے لیے مؤثر اقدامات کیے گئے، جبکہ FBR میں جامع اصلاحات کی جا رہی ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا تھا کہ IT اور زراعت کے شعبے میں بے پناہ صلاحیت موجود ہے، لیکن ترقی کے لیے معاشی پالیسیوں کا تسلسل ناگزیر ہے۔ انہوں نے بتایا کہ رواں سال پاکستان کی اقتصادی صورتحال بہتر رہی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن میں پاکستان امریکہ بزنس کونسل کے وفد سے ملاقات ہوئی، جس میں سازگار کاروباری ماحول کی فراہمی اور سرمایہ کاری میں اضافے پر تبادلہ خیال ہوا۔ وزیر خزانہ نے زراعت، IT، کانکنی، معدنیات اور توانائی سمیت اہم شعبوں میں مواقع کے بارے میں آگاہ کرتے ہوئے سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ اور پاکستان سٹاک مارکیٹ کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں کہ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان برقرار ہے، جبکہ 100 انڈیکس تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے۔ مزید خبروں کی جانب بڑھیں گے اور یہاں آپ کو بتائیں گے کہ وفاقی وزیر صنعت و پیداوار رانا تنویر حسین کی زیر صدارت فرٹیلائزر ریویو کمیٹی کا جائزہ اجلاس ہوا۔ خریف سیزن کے لیے یوریا اور DAP کھاد کی طلب اور رسد کا بھی جائزہ لیا گیا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ ہمیں اپنے کسانوں کے لیے یوریا اور DAP کھاد کی دستیابی کو یقینی بنانا ہوگا۔ وزارت صنعت و پیداوار صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر کھاد دستیابی اور پروڈکشن کو مانیٹر کر رہی ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ حکومت کسانوں کی فلاح و بہبود اور زراعت کی بہتری کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ کھادوں کی بروقت فراہمی سے کسان پیداوار میں بھی اضافہ کر سکے گا۔ کسان خوشحال ہوگا تو ملک خوشحال ہوگا۔ ایشیائی فورم انفارمیشن ٹیکنالوجی کامرس نیٹ ورک کا 24واں ایڈیشن 18 تا 20 اپریل تک ایکسپو سینٹر لاہور میں منعقد ہوگا، جس میں وزیر مملکت IT اینڈ ٹیلی کام شیزا خواجہ بطور مہمان خصوصی شرکت کریں گی۔ ITCN کے اس ایڈیشن میں $500 ملین کی سرمایہ کاری کے ساتھ 12 ممالک کے ساتھ بین الاقوامی سرمایہ کاروں کا وفد بھی شرکت کرے گا۔ اس ایونٹ میں 700 سے زائد سٹالز قائم کیے جائیں گے، جن میں معروف عالمی اور پاکستانی ٹیک کمپنیاں حصہ لیں گی۔ ایونٹ میں AI سمٹ، گلوبل سیکیورٹی سمپوزیم، گیمنگ اور اسکالرز راؤنڈ ٹیبل، انویسٹر سمٹ، فری لانس سمٹ، میڈ ان پاکستان راؤنڈ ٹیبل کانفرنس بھی ہوں گی۔ ایونٹ ڈائریکٹر عمیر نظام کے مطابق IT، ٹیلی کام اور اس سے منسلک صنعتیں پاکستان میں ایک منفرد امید افزا دور میں داخل ہو رہی ہیں۔ SIFC کی ہدایات اور موجودہ پالیسیوں پر پاکستانی ٹیک ایکو سسٹم خلیجی خطے اور مغربی منڈیوں میں داخل ہو رہا ہے۔ اس تقریب کو وزارت IT اور ٹیلی کام، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی، خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل، پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ اور پاکستان سافٹ ویئر ہاؤسز ایسوسی ایشن کی معاونت حاصل ہوگی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کیا گیا ہے۔ وزارت خزانہ نے پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔
नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत 4 रुपये 53 पैसे इजाफे के बाद 293 रुपये 94 पैसे फी लीटर हो गई है, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 8 रुपये 14 पैसे इजाफे के बाद नई कीमत 290 रुपये 38 पैसे फी लीटर हो गई है। नई कीमतों का इतलाक हो गया है। गुज़श्ता 15 रोज़ में आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे। तेजी का रुझान बरकरार है, जबकि 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। 500 से ज़ायद पॉइंट्स के इजाफे के साथ दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स 71,000 की हद अबूर कर गया है। इसी बारे में मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे ज़मीर अब्बास से। ज़मीर, आगाह कीजिएगा, स्टॉक एक्सचेंज की सूरत हाल के हवाले से 71,000 की हद अबूर की गई है। कारोबारी सरगर्मियों और सरमाकारों के एतमाद के हवाले से अपडेट कीजिए। ज़मीर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आगाह कीजिएगा। कराची में स्टॉक एक्सचेंज की जो सूरत हाल है, 100 इंडेक्स आज 71,000 की हद अबूर कर गया है। कारोबारी सरगर्मियों का अहवाल, सरमाकारों के एतमाद के बारे में अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान की जो मौशी इस्लाहात हैं और जो मौजूदा हुकूमत ने मौशी पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करवाई हैं, उनके समरात मिलना शुरू हो गए हैं। और इस वक्त मार्केट में जो तेज़ी देखने में आ रही है वो सिर्फ इस वजह से है कि जो मौजूदा हुकूमत है उन्होंने इकोनॉमिकल कंडीशंस को बेहतर करने के लिए डिसीजंस किए हैं। न सिर्फ वो वादे कर रहे हैं बल्कि उन पर अमली जो इक़दाम कर रहे हैं उसका अब समर नज़र आ रहा है, तो जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स का एतमाद बहाल हो रहा है। अगर हम इनके कुछ पॉइंट्स करें तो इस वक्त सबसे बड़ी जो अहम बात है जिसकी वजह से मार्केट में तेज़ी देखने में आ रही है वो है सऊदी वक्त का जो पाकिस्तान में आमद है, और यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से जो बातचीत हो रही है, क्योंकि पहले ये सिर्फ और सिर्फ एमओयूज तक महदूद थी बातें, लेकिन अब जो अमली चीज़ें नज़र आ रही है उसकी वजह से इन्वेस्टर्स काफ़ी पुरुमीद हैं। खास करके जो स्टॉक मार्केट में जो ब्रोकर्स हैं या जो कंपनीज हैं उनको नजर आ रहा है कि अब जो मौशी इस्लाहात हैं, जो मौशी एजेंडा ये जो मौजूदा हुकूमत ने इंट्रोड्यूस करवाया था उस पर अमल पैरा है ये। इसके बाद अगर हम देखें जो प्राइवेटाइजेशन के हवाले से जो इक़दाम किए जा रहे हैं और जो तेजी दिखाई जा रही है उस पर भी काफ़ी लोग खुश हैं। खास करके जो स्टॉक मार्केट में PIA के अगर हम बात करें तो उनके जो शेयर्स हैं जो तकरीबन सिर्फ 6 रुपये तक ट्रेड कर रहे थे दिसंबर तक, अब वो तकरीबन 30 रुपये तक पहुँच चुके हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इन्वेस्टर्स ने कितना पैसा इसमें लगाया हुआ है और कितना पुरुमीद है, क्योंकि न सिर्फ ये बात हुई है लेकिन इस दफ़ा जो अमली काम किए गए हैं और डेडलाइन भी दी गई है कि जून के 15 तक इसको प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा, उसके बाद दीगर इदारे भी आएंगे। अगर हम इसके अलावा बात करें जो इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारा अब जो रैंकिंग है, जो रेटिंग्स हैं और जो आलमी इदारे हैं, जरीदे हैं जिन्होंने हमारे इकोनॉमिकल कंडीशन के हवाले से रिपोर्ट दी है, वो सब मुस्बत हैं और सब यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान अगर इसी तरीके से इन पॉलिसीज पर अमल पैरा रहा तो अगले साल तक जो न सिर्फ महंगाई की शरह कम होगी बल्कि मुआशी इस्तेहकाम भी आना शुरू हो जाएगा। IMF के अगर देखा जाए तो उनकी जो आखिरी किस्त थी स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत वो भी रवां महीने हमें जो है मिल जाएगी 1.1 अरब डॉलर। तो उसके बाद हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं वो भी स्ट्रांग हो जाएंगे। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं वो हुकूमत की अपनी काविशों और उनकी जो पॉलिसीज़ हैं उनके समरात से मिल रहे हैं। अगर हम देखें जो जब ये हुकूमत पिछले टेन्यूर में उन्होंने इक़्तिदार छोड़ा था तब भी इसी तरीके से थोड़ा सख्त फैसले करके गए थे, लेकिन उसके फिर समरात मिलना शुरू हुए। न सिर्फ डॉलर थोड़ा सा कम हुआ बल्कि हमने देखा कि बाकी चीज़ें भी जो मौशी इशारे हैं वो भी बेहतर होना शुरू हो गए थे। अब दोबारा जब इन्होंने हुकूमत बनाई है तो उसी अज़म के साथ बनाई है कि तमाम जो पॉलिसी थी उनको उसी तरीके से लेके चलाया जाएगा ताकि मज़ीद मुआशी इस्तेहकाम मुल्क में आए, मुल्क तरक्की करे। जी बहुत शुक्रिया ज़मीर अब्बास आपका हमें अहवाल से आगाह करने के लिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुश्रा बीबी की बन्नी गाला से अडियाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज कर दी है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने दरख्वास्त पर समाअत की। बुश्रा बीबी की जानिब से कोई वकील अदालत में पेश नहीं हुआ। अस्सलामुअलैकुम। बैनुल अक़वामी मंजरनामे के साथ मैं हूँ नाज़िया कमल। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे गज़ा की सूरत हाल की, जहाँ इसराइल की वहशियाना बमबारी का सिलसिला जारी है और काबिज़ फ़ौज ने रिहायशी इमारतों को मुसलसल निशाना बनाया है। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक 24 घंटे के दौरान सिहोनी फ़ौज के हमलों में मज़ीद 68 अफराद शहीद और 94 ज़ख्मी हुए हैं। 7 अक्टूबर से जारी इसराइली दहशतगर्दी में अब तक 33,797 फ़लस्तीनी शहीद और 76,465 ज़ख्मी हो चुके हैं। इसराइली फ़ौज के तर्जुमान ने एक बयान में गज़ा के महसूर लोगों को शिमाली इलाकों में वापस न जाने के बारे में खबरदार किया है।
फलस्तीनी मीडिया के मुताबिक 15 इसराइली ड्रोन्स ने वस्ती गजा के नसीरात पनाह गुज़ीन कैंप के शिमाल में फलस्तीनियों के एक ग्रुप पर बमबारी की, जिससे कम अज़ कम 2 अफराद शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए। इसराइली बहरिया की कश्तियों ने शिमाली गजा में अपने घरों को वापस जाने की कोशिश करने वाले दर्जनों बेघर फलस्तीनियों पर फायरिंग की, जिससे 5 अफराद जख्मी हो गए। इसराइली हमलों की वजह से गजा में सेहत का निज़ाम मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। निहत्ते फ़लस्तीनियों को शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत का सामना है। इसराइली पाबंदियों की वजह से इमदादी इदारों को गजा में इमदाद की तरसील में सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के जौहरी तवानाई के बैनुल-अक़वामी इदारे के सरबराह राफेल ग्रोसी ने कहा है कि वो इसराइल की जानिब से ईरानी जौहरी तनसीबात को मुमकिना तौर पर निशाना बनाने के बारे में फ़िक्रमंद हैं। राफेल ग्रोसी ने न्यूयॉर्क में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए इसराइल पर तहम्मुल का मुज़ाहरा करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हम ईरान की जौहरी तनसीबात पर इसराइली हमले के बारे में हमेशा से फ़िक्रमंद रहते हैं। उनका कहना था कि ईरान ने इतवार को अपनी जौहरी तनसीबात को सिक्योरिटी ख़दशात की बुनियाद पर बंद कर दिया था और सूरत हाल पुरअमन होने तक IAEA के मुआयनाकारों को जौहरी तनसीबात से दूर रखा गया। ताहम IAEA के डायरेक्टर जनरल ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल का ईरानी तनसीबात के मुआयने की हमारी सरगर्मियों पर कोई असर नहीं पड़ा। वाज़ेह रहे कि इसराइल के फ़ौजी सरबराह ने गुज़श्ता रोज़ कहा था कि उनका मुल्क ईरान की जानिब से इतवार को किए गए मिसाइल और ड्रोन हमले का जवाब देगा। और नाज़रीन, ईरान और इसराइल के दरमियान तनाव के बाद मशरिक़ वस्ता में कशीदगी में मज़ीद इजाफा हो गया है। ख़ित्ते की सूरत हाल पर गौर के लिए बुलाया जाने वाला सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बगैर किसी नतीजे के ख़त्म हो गया। इजलास से खिताब करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह अंतोनियो गुतरेस ने कहा कि मशरिक़ वस्ता तबाही के दहाने पर है। ख़ित्ते के लोगों को एक तबाहकुन जंग के हकीकी ख़तरे का सामना है। दुनिया मज़ीद जंगों की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि फ़रीक़ैन तहम्मुल का मुज़ाहरा करें और कशीदगी कम करने के लिए इक़दामात करें। खबर शामिल करेंगे भारत से, जहां इंतखाबात के पेश नज़र गोदी मीडिया मोदी की तारीफों के पुल बांधने में मसरूफ़ दिखाई दे रहा है। बैनुल-अक़वामी मीडिया सरकार का भयानक चेहरा बेनकाब कर रहा है और भारत खित्ते में अपनी धाक बिठाने की जो कोशिश कर रहा है वो भी नाकाम दिखाई दे रही है। भारत के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात तो पहले ही ख़राब हैं, लेकिन अब मालदीव, श्रीलंका, यहाँ तक कि दोस्त मुल्क बांग्लादेश के साथ भी दोस्ती ख़तरे में है। मालदीव में भी इंडिया आउट मुहिम अब जोर पकड़ती जा रही है, जहां पर सदर मोहम्मद मुइज़ ने साफ अल्फाज में कहा है कि मालदीव की सरजमीन पर किसी भी भारतीय फ़ौजी को रहने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। भारतीय अवाम के मुताबिक मोदी सरकार इंतखाबात के पेश नज़र हमसाया ममालिक के साथ तनाज़े को तूल देकर इंतहा पसंद अवाम के वोट हासिल करना चाहती है। BBC के मुताबिक बैनुल-अक़वामी सतह पर अपनी साख को मजबूत बनाने के लिए भारत के अपने हमसाया ममालिक के साथ मुस्बत ताल्लुकात नागुज़ीर हैं। और नाज़रीन, साथ ही साथ मोदी सरकार भारतीय फ़ज़ाइया की तबाही का भी सबब बनने लगी है। मोदी सरकार जहां भारत के दीगर शोबों को तबाह करने पर लगी है, वहीं इसने भारतीय फ़ज़ाइया जैसे अहम शोबे की साख पर भी सवालिया निशान लगा दिया है। किसी भी मुल्क की फ़ज़ाइया का मकसद मुल्क की फ़ज़ाओं को महफूज बनाना होता है, मगर भारत में भारतीय फ़ज़ाइया को मारूफ कारोबारी शख्सियत मुकेश अंबानी के बेटे की शादी के लिए इस्तेमाल किया गया। भारतीय अखबार द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक शादी की तकरीब में दुनिया भर से मशहूर और हाई प्रोफाइल शख्सियात ने शिरकत की। गैर मुल्की मेहमानों को लाने के लिए जिन जहाज़ों का इस्तेमाल किया गया, उनकी फ़ज़ाई सरगर्मियों की सारी जिम्मेदारी भारतीय फ़ज़ाइया के सुपुर्द थी। इस मकसद के लिए भारतीय फ़ज़ाइया ने 600 से ज़ायद परवाज़ों की नकलो हरकत को संभाला था, ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या पेश न आए, जिससे ये बात वाज़ेह होती है कि मोदी सरकार ज़ाती मफाद के लिए मुल्की इदारों को बेजा इस्तेमाल करती है। इब्तदाई तौर पर रिलायंस ग्रुप ने सेक्रेटरी दिफा को जो ख़त तहरीर किया, उसमें 23 फरवरी से 4 मार्च के दरमियान 30 से 40 तैयारों की लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए सहूलियात डिमांड की गई थी। हकीकतन इन ऑपरेशंस के लिए 600 से ज़ायद परवाज़ों के लिए लैंडिंग और टेक ऑफ की सहूलियात दरकार थीं। मोदी हुकूमत की जानिब से ज़ाती मफाद के लिए भारतीय फ़ज़ाइया का बेदरीग इस्तेमाल करने का ये वाज़ेह सबूत है। जामनगर एयरपोर्ट दिफाई लिहाज से बहुत अहमियत का हामिल है, मगर मुकेश अंबानी के बेटे के मेहमानों के लिए इसे एक कमर्शियल एयरपोर्ट के तौर पर इस्तेमाल किया गया, जिससे ये दिफाई मकाम शादी बारात के मकाम में तब्दील हो गया। जामनगर हवाई अड्डे को भारतीय फ़ज़ाइया की सरबराही में 26 फरवरी से 6 मार्च तक बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे का दर्जा दे दिया गया, जिससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि ऐसे हालात में एक नहीं बल्कि कई अभिनंदन पैदा होंगे। मोदी सरकार की जानिब से इस तरह के इक़दाम ने यह भी वाज़ेह कर दिया कि भारतीय हुकूमत माली फ़ायदे के लिए मुल्क के अहम इदारों को तबाह कर सकती है। मोदी सरकार के इस अमल को भारत में इंतहाई तनक़ीद का निशाना बनाया जा रहा है और इस हवाले से तहक़ीक़ात का मुतालबा भी सामने आया है। और अब कुछ बात करेंगे मकबूजा वादी कश्मीर की, जहां काबिज़ भारतीय फ़ौज ने पकड़ धकड़ की कार्रवाइयों का सिलसिला मज़ीद तेज़ कर दिया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फोर्सेज ने श्रीनगर, बारामूला, पुलवामा, शुपियां, जम्मू और दीगर अजला में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयों के दौरान मुतअद्दिद बेगुनाह कश्मीरियों को गिरफ्तार कर लिया।
فوجیوں نے بھارتی پارلیمانی انتخابات سے قبل مقبوضہ کشمیر میں چھاپوں، کریک ڈاؤنز اور گرفتاریوں کا سلسلہ تیز کر دیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے نظر بند حریت رہنماؤں اور کارکنوں کی حالت زار پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ حریت ترجمان نے کہا ہے کہ حریت چیئرمین مسرت عالم بٹ، محمد یاسین ملک، شبیر احمد شاہ، آسیہ اندرابی اور نعیم احمد خان سمیت ہزاروں حریت رہنما، نوجوان، صحافی اور انسانی حقوق کے کارکن مسلسل جیلوں میں قید ہیں اور انہیں علاج، معالجے اور دیگر بنیادی سہولیات کی بھی فراہمی ممکن نہیں بنائی جا رہی۔ کشمیری سول سوسائٹی کے ارکان ڈاکٹر زبیر احمد، محمد فرقان، محمد اقبال شاہین اور سید حیدر حسین نے کہا ہے کہ مودی حکومت کشمیری عوام کو سیاسی، آئینی، ثقافتی اور معاشی طور پر بے اختیار بنانے کے لیے مقبوضہ جموں کشمیر میں اپنے نوآبادیاتی ایجنڈے کو مسلسل آگے بڑھا رہی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں کانگریس کے ورکنگ صدر رمن بھلا نے جموں میں ایک عوامی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے مقامی وسائل کے استحصال پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری عوام مقامی زمینوں اور روزگار کے مواقع پر بیرونی اداروں کے قبضے کو ہرگز برداشت نہیں کر سکتے۔ دوسری جانب مقبوضہ علاقے میں بارشوں اور برف باری کی وجہ سے سری نگر لیہ ہائی وے ٹریفک کے لیے بند ہو گئی ہے۔ مزید خبروں میں آپ کو بتائیں گے کہ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری سے سنی تحریک کے سربراہ سروت اعجاز قادری نے گورنر ہاؤس کراچی میں ملاقات کی۔ ملاقات میں گورنر سندھ کے فلاحی منصوبوں اور باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر سنی تحریک کے سربراہ سروت اعجاز قادری نے گورنر سندھ کے تمام منصوبوں کو مثالی قرار دیتے ہوئے کہا کہ IT کی تعلیم نوجوانوں کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگی۔ پاک فوج بلوچستان میں بحالی امن کے ساتھ ساتھ صوبے میں تعلیم اور صحت سمیت سماجی اقتصادی ترقی کے لیے بھی مصروف عمل ہے۔ اس سلسلے میں بلوچستان کی سلامتی کے لیے مشکلات کے باوجود پاک فوج نے مقامی عوام میں بیداری کی مہم چلائی، جس کے نتیجے میں عسکریت پسندی میں ملوث افراد نے ہتھیار ڈال کر دوبارہ قومی دھارے میں شامل ہونا شروع کر دیا۔ مسلح افواج نے بلوچستان میں متعدد منصوبے شروع کیے، جن میں کیڈٹ کالج، ہسپتالوں اور تعلیمی اداروں کا قیام شامل ہے۔ سی پیک میں ہزاروں چینی انجینئرز، ورکرز اور چینی حکام کو سیکیورٹی بھی پاک فوج نے ہی فراہم کی۔ پاک فوج اور حکومت بلوچستان نے مقامی تعلیمی اداروں کو متحرک کرتے ہوئے دور دراز علاقوں میں تعلیم کے فروغ کے لیے ادارے قائم کیے۔ اس کے ساتھ ساتھ سڑکوں، تعلیمی سہولیات، پانی کے نظام اور طبی سہولیات کی فراہمی میں پاک فوج نے بلوچستان کی ترقی کے لیے بھی مثبت کردار ادا کیا ہے۔ رکڑک منصوبہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں اور بلوچستان کے عوام کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگا۔ آج پاک فوج کی زبردست کاوشوں اور قربانیوں کی بدولت بلوچستان ترقی کی راہ پر گامزن ہو چکا ہے۔ فرنٹیئر کور نارتھ خیبر پختونخوا نے چترال، دیر، باجوڑ، محمد، خیبر اور اکسئی اور سوات میں منشیات، کرنسی اور غیر ملکی اشیاء کی اسمگلنگ کے لیے بڑی سطح پر کامیاب کارروائیاں کی۔ ان کارروائیوں کے دوران اشیاء خورنوش، برقی آلات، کپڑا، ٹائر، آٹو پارٹس، غیر ملکی جدید اسلحہ قبضے میں لے لیا گیا۔ قبضے میں لی گئی اشیاء میں سگریٹ، پان، چھالیاں اور غیر ملکی ادویات بھی شامل تھیں، جن کو متعلقہ اداروں کے زیر نگرانی نظر آتش کر دیا گیا۔ FT نارتھ خیبر پختونخوا نے افغانستان سمگل کیا جانے والا 6 کلو گرام سونا اور بھاری مقدار میں غیر ملکی کرنسی بھی ضبط کر لی۔ اس دوران 5100 کلو گرام مختلف اقسام کی منشیات برآمد کر کے قانونی کارروائی کے لیے متعلقہ اداروں کے حوالے کر دی گئی۔ FT نارتھ خیبر پختونخوا نے 104 جرائم پیشہ افراد کو گرفتار کر کے ان کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اچانک مری کے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال پہنچ گئیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے OPD میں مریضوں کی لمبی لائنیں دیکھ کر برہمی کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ہسپتال کے نظام کو مزید بہتر بنایا جائے۔ انہوں نے ہسپتال کے مختلف شعبے اور OPD کا معائنہ کیا اور مریضوں سے بات چیت کی اور ان کے مسائل کے بارے میں دریافت کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے ننھے بچے سے اظہار شفقت کیا اور ڈاکٹر کو بہترین علاج کی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا ذہنی امراض کے جدید علاج کی فراہمی اور دماغی امراض کے ہسپتالوں کی اپ گریڈیشن کا منصوبہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب نے لاہور انسٹی ٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ کا دورہ کیا۔ سینئر وزیر نے مردوں اور خواتین کے لیے مختص وارڈز، دستیاب سہولتوں اور انفراسٹرکچر کا معائنہ کیا۔ سینئر وزیر نے علاج گاہ میں ادویات، ڈاکٹرز، عملے اور طریقہ علاج سے تمام تفصیلات کا جائزہ لیا۔ سینئر وزیر پنجاب نے زیر علاج مریضوں کے لواحقین سے بھی ملاقات کی، سہولیات اور مسائل سے متعلق دریافت کیا۔
इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए सीनियर वजीर पंजाब ने कहा कि 1947 के बाद जहनी सेहत और दिमागी अमराज के इलाज पर मुनासिब तवज्जो नहीं दी गई। क़यामी पाकिस्तान के 77 साल बाद मेंटल हेल्थ के शोबे में जदीद तरीका इलाज और टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराने जा रहे हैं। मरियम औरंगजेब ने कहा कि आलमी और मकामी इदारों के मुताबिक पाकिस्तान में जहनी सेहत से मुतालिक अमराज बढ़ रहे हैं। बच्चों के माहिरीन नफ्सियात की खास तौर पर कमी है। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। 24 घंटों के दौरान 11 मुलजमान को बिजली चोरी करने पर गिरफ्तार कर लिया। वजारत तवानाई पावर डिवीजन की हिदायत के मुताबिक चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर शाहिद हैदर की ज़ेर निगरानी इंसदाद बिजली चोरी मुहिम में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मजमूई तौर पर 281 मुलजमान बिजली चोरी में मुलव्विस पाए गए, जिनमें से 112 के खिलाफ मुकदमात दर्ज हो चुके हैं। पकड़े जाने वाले कनेक्शंस में 7 कमर्शियल, 5 ज़रई, 1 इंडस्ट्रियल और 268 डोमेस्टिक थे। तमाम कनेक्शंस मुनक़ता करके उनको 1,81,466 यूनिट डिटेक्शन बिल की मद में चार्ज किए गए हैं, जिनकी मालियत 48,41,963 रुपये है। मंडी उस्मान वाला में कनेक्शन को 3,77,000 रुपये, मोशी दरवाज़ा में कनेक्शन को 1,45,000 रुपये की रकम चार्ज की गई है। और बैसाखी मेले के हवाले से आपको बताएंगे कि बैसाखी मेले में शिरकत करने के लिए भारतीय सिख यात्री बाबा गुरु नानक की जाए पैदाइश गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहब पहुंच गए हैं। सिख यात्री खुसूसी ट्रेनों के जरिए ननकाना साहब रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। सिख रहनुमाओं ने हुकूमत पाकिस्तान और मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड का बेहतरीन इंतजाम करने पर इजहार तशक्कुर किया और कहा कि हम पाकिस्तान को हमेशा अपना दूसरा घर समझते हैं। यहाँ आकर जो खुशी मिलती है इसको अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। भारतीय सिख यात्री ननकाना साहब में 3 रोज़ क़याम के दौरान अपनी मजहबी रसूमात अदा करेंगे। ननकाना साहब में 3 रोज़ क़याम के बाद सिख यात्री 18 अक्टूबर को गुरुद्वारा करतारपुर चले जाएंगे। मारूफ कॉमेडियन बब्बू बराल को अपने मदाहों से पिछले 13 बरस बीत गए। अदाकार ने बेपनाह मज़ाहिया किरदार अदा किए जो आज भी देखने वालों को मसरूर करते हैं। स्टेज की दुनिया के बेताज बादशाह अयूब अख्तर अल मारूफ बब्बू बराल ने अपनी फ़नी ज़िंदगी का आगाज़ 1982 में गुजरांवाला से किया और फिर 1984 में लाहौर मुंतकिल हो गए, जहां पर उन्होंने बाग़-ए-जिन्ना में ओपन एयर थिएटर में काम शुरू किया। मज़ाहिया अदाकार ने स्टेज ड्रामे शर्तिया मिट्ठे से मुल्कगीर शोहरत पाई। 3 अशरों पर मुहित ज़िंदगी में बब्बू बराल ने भरपूर अरूज देखा और 50 के करीब फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। उन्होंने अदाकारी के साथ साथ स्टेज ड्रामे लिखे और हिदायत भी जारी की। बब्बू बराल सेहत की खराबी के बाद 16 अप्रैल 2011 को 51 बरस की उम्र में दुनिया फानी से कूच कर गए। मुनफरिद अंदाज़े अदाकारी की वजह से वो आज भी अपने परिस्तारों के दिलों पर राज करते हैं। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी ने लाहौर को दिलकश बरकी कुमकुमों और रोशनियों से सजा दिया है। मज़ीद तफसील से आगाह कर रही हैं वर्दा सलीम। रोशन रोशन फिजाएं और जगमग करती शाहराएं, यह है लाहौर का चमकता धमकता चेहरा, जिसे पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी ने बड़ी महारत से सजाया है। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर का झूमर कहलाने वाली खूबसूरत नहर के तरफ में रंग बिरंगे बरकी कुमकुमे के जैसे हों ज़मुर्द और नीलम जैसे नगीने देखने वालों को एक मर्तबा अपने शहर में ले लेते हैं। PHA का बहुत शुक्रगुजार है, वो हर इवेंट पे हम लोगों के लिए इन्वायरमेंट बनाते हैं। रिंग रोड वाली साइड पे चले जाएं, इकबाल टाउन वाली साइड पे चले जाएं, धर्मपुरा चले जाएं, आप ऑनवर्ड पूरे लाहौर को उन्होंने कवर किया हुआ है। अच्छी बात है। हम पिक्स ले रहे हैं, काफी अच्छा महसूस हो रहा है और मौसम भी बहुत प्यारा है। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी ने बागात के शहर लाहौर को दिलकश बरकी कुमकुमों की मदद से सजाया है। गुलबर्ग मेन बॉलीवुड, जेल रोड, शाहराए कायदे आजम और नहर के इतराफ में रंग बिरंगी रोशनियों ने खूबसूरत समा बांध रखा है। नहर के साइडों पे जो लाइटिंग की है बच्चों के देखने के लिए, बच्चे उसको बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। शहर लाहौर इतना खूबसूरत है माशाल्लाह, इसको और ज़्यादा सजा के लोगों को दिखाना चाहिए। कश्तियाँ, फूल, सितारे वगैरह। लाहौर की खूबसूरत रातें, नहर की ठंडी हवाएं और इस पर दोनों तरफ पर रंग बिरंगी रोशनियाँ वज़ीर आला मरियम नवाज के विजन के मुताबिक PHA लाहौर की खूबसूरती को दोबारा करने में पेश हैं। यकीन कीजिए, आप इस शाहरा से एक मर्तबा गुजरेंगे तो अपने साथ खूबसूरत लम्हात और एहसास जरूर लेके जाएंगे। PHA की तरफ से शहर लाहौर को रोशनियों से सजाने से शहर लाहौर बुकाए नूर का मंजर पेश कर रहा है। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। PDMA ने 18 से 21 अप्रैल तक पंजाब भर में तेज बारिश का इम्कान जाहिर किया है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र ज़िला इंतज़ामिया को अलर्ट जारी कर दिया गया है।
DGPDM में इरफान अली काठिया के मुताबिक महकमा सेहत, आबपाशी, तामीर व मवासलात, लोकल गवर्नमेंट, लाइव स्टॉक, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, वासा पंजाब पुलिस और सिविल डिफेंस को भी मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र अलर्ट जारी कर दिया गया है। PDM में कंट्रोल रूम 24 घंटे फाल है। नशेबी इलाकों में बसने वालों को इदारों का मुकम्मल ताउन हासिल होगा। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद ने अहकामात जारी करते हुए कहा कि नदी नालों के रास्ते में रुकावटों को फिलफौर हटाया जाए। रेस्क्यू इदारे किसी भी इमरजेंसी सूरत हाल के लिए तैयार हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेदर अपडेट के साथ मैं हूं कासिम अली। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची में 18 अप्रैल को बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। शहर में हल्के बादलों और ठंडी समंदरी हवा चलने से मौसम खुशगवार हो गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। आइंदा 24 घंटे के दौरान कराची में कहीं हल्के और कहीं गहरे बादल, जबकि दिन के औकात में हब्स के बायस गर्मी की शिद्दत ज़्यादा महसूस हो सकती है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। तहम मुल्क के बालाई इलाकों खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मज़ीद बारिश का इम्कान है। मगरबी बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिश और यालाबारी का इम्कान है। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक चित्राल, दीर, सवात, कोहिस्तान और मालाकंड में मज़ीद बारिश और पंजाब, मरी, गलियात में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मतला अब्र आलूद रहने के अलावा बालाई और वस्ती पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हुई। नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं। मौसम की खबरों से इतना ही।